اچھا، کیو ان ہیزرڈ میں کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ نے ایکسکیویشن کی ہے، وہاں سے مٹی کلیپس کر گئی، نیچے لوگ کام کر رہے ہیں. اب یہ جو مٹی ہوتی ہے 1 کیوبک یارڈ جتنی مٹی، اگر ایک مٹی کا والیوم 1 کیوبک یارڈ کے برابر ہوگا تو اس کا وزن ایک گاڑی، یہ ایک بڑی گاڑی 4x4 ویلر گاڑی جو ہے اس کے برابر اس کا ویٹ ہوتا ہے. تو جتنے نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ کرش ہو سکتے ہیں. بے تحاشا اموات ہوتی ہیں کنسٹرکشن انڈسٹریز میں ایکسکیویشنز کے کلیپس کرنے کی وجہ سے، اور اس میں مختلف وجوہات ہیں کہ کیوں ایکسکیویشنز کلیپس کرتی ہیں. فرسٹ ریزن، موسٹ امپورٹنٹ ریزن، پور پلاننگ کرنا. ہم نے کام شروع کرنے سے پہلے پرمٹ نہیں لیا، انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹیز کو ہم نے نہیں چیک کیا، یا سپرویژن نہیں کی. سپرویژن نہیں ہو رہی، وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں، اور ایک سینئر سپروائزر وہاں پہ نگرانی نہیں کر رہا. تو پور پلاننگ کی وجہ سے کیو ان ہیزرڈ ہو سکتا ہے، کیو ان میں مطلب اس کا ہیزرڈیس ایونٹ ہو سکتا ہے. دوسری جو بڑی ریزن ہے وہ ان ایڈیکویٹ پروٹیکشن سسٹمز. جب ہم نے پلاننگ ہی ٹھیک طریقے سے نہیں کی تو پروٹیکشن سسٹم کیون سے بچانے کے لیے جو مختلف قسم کے پروٹیکشن سسٹمز ہوتے ہیں، سلوپنگ ہے، بینچنگ ہے، شورنگ ہے، شیلڈنگ ہے، ہم آگے جا کے اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. تو اگر پروٹیکشن ہم نے والز کی نہیں کی، ایکسکیویشن کے ایجز کو ہم نے وہاں پہ پروٹیکٹ نہیں کیا، یا سلوپ اگر ہم نے ایسی بنائی جس کا اینگل ٹھیک نہیں ہے، اینگل کم ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کیون ہو جاتا ہے. اور کیا وجہ ہے کیون ہونے کی؟ سرچارج لوڈ. جو ہم نے ایکسکیویشن ایج کے اوپر وزن ڈالا، سٹریس لوڈنگ کی ہے ہم نے سوائل کی، اس کے قریب اگر یہ آپ پکچر دیکھیں تو یہاں سے یہ جو کیون ہوا اس کے قریب ہی ایک اکوپمنٹ ہے، چاہے وہ کوئی ایکسکیویٹر ہے یا فورک لفٹ ٹرک ہے، جو بھی اکوپمنٹ ہے، وہ اکوپمنٹ جب اس کے اوپر پریشر ایگزرٹ کرے گی تو مٹی کی کوہیسونیس کم ہونے کی وجہ سے، مٹی کی آپس میں کمپوننٹس اس کے کوہیسو نہ ہونے کی وجہ سے، آپس میں گرپ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے، یا اس مٹی کے گرینیول ہونے کی وجہ سے وہاں سے وہ کلیپس کر جائے گی. کلیپس کر جائے گی تو نیچے لوگ کام کر رہے ہوں گے، وہ اس میں دب کے مر بھی سکتے ہیں. تو سرچارج لوڈ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ہیزرڈ ہے. اس وجہ سے جب ہم ایکسکیویشنز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ایک سیف ڈسٹینس، آگے جا کے ہم اس پہ بات کریں گے، ایک سیف ڈسٹینس تک ہم نے اس ایکسکیویشن ایج کے قریب قریب وزن نہیں زیادہ ڈالنا ہوتا. ہم نے مٹی کو بھی نکال کے باہر جو رکھنا ہے وہ بھی دور رکھنا ہوتا ہے، اس کے قریب قریب ہم نے اکوپمنٹ کو بھی نہیں جانے دینا ہوتا. تو یہ سرچارج لوڈ وہیکل، اکوپمنٹ یا میٹیریل کو وہاں پہ ہم نے رکھنا، وہ اس کی وجہ سے کلیپس ہو سکتا ہے یا کیون ہو سکتا ہے. پھر ایک اس کا ہیزرڈ سپوائلز ہے. سپوائلز کہتے ہیں اندر سے جو مٹی نکلی ہے، مطلب ہم نے کھدائی کی، ایکسکیویٹر بکٹ نے جا کے اندر سے ہٹ کیا اور اندر سے مٹی نکالی، اس مٹی کو نکال کے عارضی طور پہ ہم نے باہر رکھنا ہے، سائڈ پہ رکھنا ہے، بعد میں اس کو بیک فل کر دینا ہے. ہم نے جس طریقے سے آپ سب نے دیکھا ہوگا قبر کس طریقے سے تیار کی جاتی ہے، ایکسکیویٹ کیا جاتا ہے اس ایریا کو اور اندر سے مٹی نکال کے سائڈ پہ رکھی جاتی ہے. وہ جو مٹی اندر سے نکالی ہے سائڈ پہ رکھی ہے اور بعد میں اسی مٹی کو ہم نے دوبارہ اس میں ڈال دینا ہے، اس مٹی کو سپوائل کہتے ہیں. تو اگر ہم سپوائل رکھتے ہیں ایکسکیویشن کے ایج کے بہت قریب تو وہ کلیپس کر جائے گی. کیون ہیزرڈ کی بہت بڑی وجہ ہے کہ سپوائلز کو رکھنا. تو سپوائلز جو ہم نے رکھنی ہوتی ہیں وہ ایٹ لیسٹ 2 فٹ دور رکھنی ہوتی ہیں، اور زیادہ ہم نے اس کو بڑے مطلب وہ اونچائی تک اس کا پائل نہیں بنانا ہوتا، ہم نے اس کو سپریڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہم آگے جا کے بات کریں گے. ایک اور بہت بڑی جو ریزن ہے اس کی کیون کی، وہ مس ججمنٹ آف سوائل ٹائپ. مثال کے طور پہ کلاس سی جو سوائل ہے وہ زیادہ گرینیولر ہے، اس میں گرینیولز زیادہ ہیں تو کوہیسونیس کم ہے، آپس میں ان کی گرپ یا پکڑ کم ہے کلاس بی کی نسبت. تو مثال کے طور پہ کہ کلاس سی کی سوائل تھی اور انکمپیٹنٹ
सर्वे करने वाला बंदा है या सुपरवाइज़र है या सेफ्टी ऑफिसर ने भी उस चीज़ पे नज़र नहीं डाली, तो उसको उसने क्लास बी समझ लिया। तो उसने जो स्लोप तैयार की इस केविन से बचाने के लिए, वो क्लास बी के हिसाब से तैयार की, जो कि काफ़ी नहीं है उसको केविन से बचाने के लिए। तो क्लास सी के लिए एक अलहदा एंगल है, क्लास बी के लिए एक अलहदा एंगल है। तो सॉइल की जो टाइप है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, हम आगे जाके उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, बट सॉइल की टाइप को मिस जज कर देने की वजह से भी केविन्स होते हैं। फिर वाइब्रेशन की वजह से भी केविन्स होते हैं। वाइब्रेशन की वजह से केविन का मतलब क्या है? अगर हम एक्सकेवेशन एज के करीब या एक्सकेवेशन के करीब हम जैक हैमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कॉम्पैक्टर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी ऐसी इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से उस एरिया में वाइब्रेशन ज़मीन के थ्रू ट्रेवल करेगी। वाइब्रेशन क्या करेगी? अगर उस मिट्टी के अंदर कहीं पे भी क्रैक्स हैं और उसकी कोहेसिवनेस में कहीं पे कमज़ोरी है, या वाइब्रेट आहिस्ता आहिस्ता से करके थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन क्या करेगी कि उसकी कोहेसिवनेस को कम करके सॉइल को कोलैप्स करवा सकती है। तो वाइब्रेशन की वजह से भी केविन्स होते हैं। उसके बाद फेलियर टू इंस्पेक्ट आफ्टर रेन और अर्थक्वेक। हमने एक्सकेवेशन की आज रात को बारिश हो गई, कल सुबह हमने दोबारा आना है, काम करना है उस एक्सकेवेशन के अंदर। तो अब क्या होगा कि कल तो हमने परमिट लिया, हमने उसकी सॉइल की टाइप को भी देखा, हमने अच्छे तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन वो जो एहतियाती तदाबीर हमने ली हैं वो अब काफ़ी नहीं है, क्योंकि रात को जो बारिश हुई है, बारिश ने इसकी कोहेसिवनेस को कम कर दिया है, मिट्टी को लूज़ कर दिया है थोड़ा सा, और तो वो मिट्टी क्या होगी, वो कोलैप्स होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। या इवन अर्थक्वेक। अब अगर हम वाइब्रेशन कहते हैं ये इक्विपमेंट की वजह से वाइब्रेशन, तो अर्थक्वेक एक बहुत बड़ा सोर्स है उस वाइब्रेशन का। तो ज़मीन को जब वो हिलाएगा अच्छे तरीके से, अर्थक्वेक डिस्टर्ब करेगा, तो जो एक्सकेवेशन आज हमें महफूज लग रही थी, हो सकता है अर्थक्वेक के बाद वो महफूज ना हो। तो ये जो चेंजिंग कंडीशंस हैं, ये बहुत बड़ी एक रीज़न है एक्सकेवेशंस के केव इन की। और एक जो और रीज़न है वो एक्सकेवेटिंग प्रीवियसली डिस्टर्ब्ड और बैकफिल्ड सॉइल। अब प्रीवियसली डिस्टर्ब्ड सॉइल है, मतलब हमने एक एरिया को एक्सकेवेट किया था या हमने बैकफिल करके मिट्टी का ढेर लगाया है। अब वो जो भी क्लास हो, अब वो चाहे वो क्लास ए की सॉइल है, क्लास बी की सॉइल है, क्लास सी की सॉइल है, जो भी क्लास होगी हमने उसको क्लास सी ही समझना होता है। जो भी ऐसी मिट्टी जो प्रीवियसली हमने डिस्टर्ब की हुई है, एक्सकेवेटर्स के ज़रिए डिस्टर्ब की हुई है या हमने शॉवल्स के ज़रिए डिस्टर्ब की हुई है, उस मिट्टी की कोहेसिवनेस अच्छी नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने घर का प्लॉट लिया है कहीं पे और वो बैकफिल एरिया है, उस सोसाइटी के अंदर वो बैकफिलिंग करके प्लॉटिंग की गई है, तो वो मिट्टी उस एरिया में जनरली अगर वो क्लास बी की भी सॉइल है, तो भी आपको चाहिए कि उसको क्लास सी की सॉइल आप कंसीडर करें, बिकॉज इट वाज प्रीवियसली डिस्टर्ब्ड। ये बैकफिल्ड सॉइल थी, पहले इसको डिस्टर्ब किया गया था, तो इसकी कोहेसिवनेस वो नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। अच्छा जी, अब ये जो रीजंस हैं केव इन के, इसमें हमने आ, देखना ये होता है कि मतलब वाइब्रेशन की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से या किसी भी इस तरह की इक्विपमेंट की वजह से या शोरिंग या उसकी प्रोटेक्शन ना करने की वजह से होता क्या है, स्लाइडिंग फेलियर हो जाता है। मतलब मिट्टी में इस तरीके से टेंशन क्रैक्स आ जाते हैं, तो पूरा का पूरा ये क्लम्प है बहुत बड़ा सा, ये यहाँ से अंदर गिर सकता है। या फिर हम इक्विपमेंट इस तरीके से बाहर चल फिर रही हैं करीब ही, तो वो क्या हो सकता है, वो पूरा का पूरा सॉइल मास स्लाइड करके इस तरीके से गिर सकता है, या पूरा का पूरा मतलब ये ऊपर से यहाँ से इकट्ठा गिर गया और ये सारा का सारा यहाँ से स्लाइड होके आया है, इस तरीके से भी गिर सकता है। तो टेंशन क्रैक्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। वो टेंशन क्रैक्स वजह हैं बहुत बड़ी केविन की,
और वो टेंशन क्रैक्स क्यों हो सकते हैं? वाइब्रेशन से भी हो सकते हैं, नियर बाय इक्विपमेंट वहाँ पे ऑपरेट कर रही है उसकी वजह से भी हो सकते हैं, अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकते हैं, बारिश की वजह से भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ रीजंस जो हमने पहले पढ़ी हैं। तो मिट्टी पूरी की पूरी इस तरीके से टॉपल ओवर भी हो सकती है, पूरा बड़ा सा क्लम्प टॉपल ओवर भी हो सकता है और स्लाइड करके भी नीचे आ सकता है। लेकिन आप ये देखें कि वो उस मिट्टी का साइज क्या है, उसका वेट क्या है। अगर नीचे वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो वर्कर्स को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा वहां से निकलने का, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्रशिंग हो जाएगी, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होगा और डेथ हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है केविन की वजह से। क्रश सिंड्रोम भी होता है। क्रश सिंड्रोम का क्या मतलब है? जब इतने ज़्यादा वेट ऊपर गिरेगा तो पसलियां हैं, बॉडी है, पूरी की पूरी हेड है, वो सारे जिस्म के जो हिस्से हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो पूरे के पूरे क्रश हो सकते हैं। टोटल बॉडी इम्पैक्ट हो सकता है कि एक हैवी चीज़ आके बॉडी पे हिट कर रही है तो उसकी वजह से भी अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, डेथ हो सकती है। अब ये यूनिट वेट जो है सॉइल का, मुख्तलिफ किस्म की सॉइल्स होती हैं। लूज डर्ट है, रेत है, क्ले है, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी है, या ग्रेवल है, बजरी की तरह बारीक पत्थर के छोटे पीसेस जो हैं वो ग्रेवल, उसको बजरी को ग्रेवल कहते हैं। इन सब का वेट क्या है? अब 1 क्यूबिक मीटर अगर सॉइल है लूज डर्ट तो उसका वजन 1220 केजी के बराबर है। सैंड है 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में तो 1555 किलोग्राम के बराबर उसका वजन है, मतलब 3450 पाउंड्स के बराबर। क्ले है तो उसका 1600 वजन है, और अगर ग्रेवल है तो सबसे ज्यादा वजन है उसका, 1680 केजी वजन है। तो ये जो इसका वेट है सॉइल का, सबसे बड़ी ये वजह है कि क्रश सिंड्रोम हो जाता है और टोटल बॉडी इंपैक्ट भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कैसे होती है? अगर एक केविन हुई है, मट्टी कोलैप्स हुई है, और वो जो वर्कर है उसका सर बेशक उस मट्टी से बाहर है और वो नाक और मुंह उसका मट्टी से बाहर है, लेकिन यहां तक उसके मट्टी आ गई है, तो वो इतना ज्यादा प्रेशर इस वेट की वजह से बॉडी पे इनवर्ड्स एक्सर्ट हो रहा होता है। बेशक उसका नाक और मुंह खुला है, वो रेस्पिरेशन की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस प्रेशर की वजह से उसकी जो चेस्ट है वो चेस्ट एक्सपैंड ही नहीं कर सकती। जब वो चेस्ट एक्सपैंड नहीं कर सकती या लंग्स उसके एक्सपैंड नहीं कर सकते और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बार बार, तो उसको लैक ऑफ ऑक्सीजन का सामना करना पड़ेगा, एस्फिक्सिएशन हो जाएगी, दम घुटेगा, सांस बंद होगा, थोड़ी देर में उसकी डेथ भी हो सकती है। और अगर हम 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर उस बंदे को सीपीआर दे दें तो शायद वो बच जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर एक्सकेवेशन कोलैप्स कर गई है तो अगर आप इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए प्रिपेयर्ड भी थे तो भी आपको बहुत सारा टाइम लगेगा अंदर से लोगों को निकालने में। मतलब एक्सकेवेटर के साथ तो नहीं हम इस तरीके से निकाल सकते ना, लोग हैं अंदर, एक्सकेवेटर बकेट जाके बॉडी को भी हिट कर सकती है। तो हमने बड़ा प्लान करके सोच समझ के उसको निकालना होता है, बट ये जो कैजुअलिटी है, जो अंदर है बंदा, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सरवाइव कर पाए। तो इस वजह से वन ऑफ द बिगेस्ट हैजर्ड्स इन एक्सकेवेशंस, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो हम एक्सकेवेशंस करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्सकेवेशन के बगैर तो नहीं हो सकती। आपने अपना घर भी बनाना है, एक्सकेवेशंस तो आपको करनी पड़ती हैं। तो एक्सकेवेशंस में वन ऑफ द बिगेस्ट हैजर्ड्स क्या है? वो